Solution and suspension. In this chapter, we will first learn about the solution, that what is the solution. Solution is actually known as a homogeneous mixture. Homo means same, geneous means mixture. So homogeneous means phase. So homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. एक homogeneous mixture हो यानी कि जिसमें जो दोनों phases हैं बिल्कुल एक जैसी हो गई हों, एक जैसा बिल्कुल solution uniform सा लग रहा हो, उसको हम कहते हैं solution. Examples are salt and water uniformly mixed to form a solution, sugar and water uniformly mixed to form a solution. Zinc and copper are mixed by melting them together uniformly to form a called brass. यानी कि वो जब जिंक और कॉपर को हम मिक्स करके मेल्ट करते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन बना लेते हैं जिसको कहा जाता है ब्रास. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सोल्यूशन. तो सोल्यूशन क्या हुआ हमारे पास? इट इज़ वन ऑफ द होमोजीनियस. होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स फेज. सेम फेज मिक्सचर ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, दैट इज़ कॉल्ड अ सोल्यूशन. ठीक है, एग्जांपल्स हो गई हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, जिंक एंड कॉपर. सो लेट्स वॉच द वीडियो. So let's again revise what is solution. We have taken 3 glasses of water, 3 glass of water लिए हमने. इसके अंदर हमने एक में डाला 1 spoon of salt, ठीक है. दूसरे में हमने डाला 1 spoon of sugar. तीसरे में हमने डाला 1 spoon of पेबल्स, राइट. हमने उसके अंदर 1 स्पून ऑफ पेबल्स डाला. अब हमने देखा कि जब हमने सॉल्ट को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया, व्हेन वी हैव डिज़ोल्व दैट सॉल्ट इन वाटर, सो इट इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व, बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है. उसके सॉल्ट के पार्टिकल्स नज़र नहीं आते. हम यानी कि कहते हैं दैट सॉल्ट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर. सो दे इट फॉर्म्स द होमोजीनियस मिक्सचर. यानी उसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे तो वो सेम फेज हो गया. इट हैज़ गॉट द यूनिफॉर्म कंपोजिशन. तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जिसमें वी कांट सी द पार्टिकल्स, दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन. उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन. ठीक है. इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल है कि हमने शुगर लिया, शुगर को हमने पानी में डिज़ोल्व किया, सो इट इज़ द यूनिफॉर्म सॉल्यूशन. इट इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल. शुगर इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल, बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है. इट फॉर्म्स द होमोजीनियस मिक्सचर एंड इट is a uniform, it has a uniform composition, so we cannot see the sugar particles. जब sugar पानी के अंदर dissolve हो जाता है, so we cannot see the sugar particles, so it is one of the homogeneous mixture, so it is also called a solution. अब हमने लिया pebbles. Pebbles are not dissolved, we can see with our naked eye, they are, we can say, insoluble. हम उसे कहते हैं कि ये insoluble है. So the heterogeneous mixture हो गया. वो homo means same था, hetero means different, so it is non uniform composition, so it is not a solution. तो because we can see easily see the particles settle down. ठीक है, जो उसमें settle हुए हुए pebbles के particles हैं, we can see it easily. So solution which has got the uniform composition, which has the homogeneous mixture, the salt is completely dissolved, so it is a solution. Sugar is also the solution because it is completely dissolved, it is a homogeneous mixture, it has the uniform composition, we can't see the particles, so it is a solution. But in that pebbles, it is insoluble in water, it is a heterogeneous mixture, it is non-uniform composition, so we can see the particles, so it is not a solution. ये solution नहीं है. So a homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. जो homogeneous mixture है, solution हमारे पास mixture है of two or more substances का, उसको हम कहते हैं solution. ठीक है, homogeneous mixture of two or more substances. Example लेते हैं. The common examples of the solution is कि हमने like हम डेली हमारे पास हम डेली अपने यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक, उसमें हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर and also the flavors, but also water. So it is the uniform solution, it is a uniform mixture, so that is called a solution. उसके बाद हमारे पास है fog and clouds. It is the mixture of water vapors and air, so it is also one of the homogeneous mixture. It is also the solution. स्मोक ले लेते हैं हम. अब स्मोक में जो है कार्बन पार्टिकल्स, दैट इज़ डिजॉल्व्ड इन एयर, सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन. ऑल्सो द कार्बोनेटेड जो हमारे पास ये ड्रिंक्स होती हैं, अल्कोहल प्लस वाटर, दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूशन. Let's come to the solute. What is solute?
A substance which is to be dissolved in other substance to form a solution and present in lesser amount is called a solute. यानी वो चीज़ जो डिज़ोल्व हो रही है किसी चीज़ के अंदर, डिज़ोल्व होने वाली जो चीज़ है विच वी आर गोइंग टू डिज़ोल्व इन सम अदर सब्सटेंसेस सॉल्यूशन बनाने के लिए, और वो हमारे पास बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, दैट इज़ इन अ लेसर अमाउंट, सो दैट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूट. एग्जाम्पल इज शुगर एंड द सॉल्ट, दे आर कॉल्ड द सॉल्यूट्स इन देयर रेस्पेक्टिव्स. यानी कि दे हमारे पास ये जो हैं वो क्या कहला रहे हैं, ये हमारे पास कहला रहे हैं सॉल्यूट्स, राइट. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है हमारे पास? अ सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व्स द अदर सब्सटेंसेस इन इट, यानी वो दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है. एंड प्रेजेंट जनरली इन ग्रेटर अमाउंट, वो हमारे पास ज़्यादातर जो है वो ग्रेटर अमाउंट में ही होता है, यानी कि जो इसमें हम किसी भी चीज़ को हल कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास सॉल्वेंट कहलाता है. सो द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व्स अदर सब्सटेंसेस इन इट एंड प्रेजेंट इन जनरली लेसर ग्रेटर अमाउंट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. एग्जाम्पल, वाटर इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द एक्यूज सॉल्यूशन ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस, यानी कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हम दूसरी चीज़ों को डिज़ोल्व करते हैं, तो जो हमारे पास डिज़ोल्व करने वाला है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट. दोबारा से उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं. एक हमने दो जग्स लिए, एक में हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, एक के अंदर हमारे पास शुगर सोल्यूशन है. ठीक है, अब हमारे पास इसमें दो कंपोनेंट्स हैं. एक में जो शुगर सोल्यूशन में वो पहला है वो है सॉल्ट, दूसरा है वाटर. ठीक है, अब इसमें शुगर सोल्यूशन के अंदर हमारे पास एक जो है वो है शुगर, दूसरा है वाटर. हम देख रहे हैं कि ये जो सॉल्ट एंड वाटर हैं उन्होंने मिलके सोल्यूशन बनाया, शुगर एंड वाटर है उसमें सोल्यूशन, यानी कि जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हुआ किसके अंदर? वाटर के अंदर. ठीक है, और इसमें शुगर, दूसरे वाले में शुगर डिज़ोल्व हुई वाटर के अंदर. ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक चीज़ होती है, इन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं जो डिज़ोल्व हो रहे हैं, एक स्मॉलर उसमें होता है, मींस उसकी कम अमाउंट में होता है, स्मॉलर होता है, एक लार्जर होता है. इसी तरह से शुगर है, उसके अंदर शुगर सोल्यूशन है, उसके अंदर जो शुगर है वो स्मॉलर कंटेंट में है और जो वाटर है वो लार्जर कंटेंट में. सो द व्हाट इज़ द सॉल्यूट? द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, यानी जो स्मॉलर अमाउंट में होता है दैट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूट, राइट. और जो हमारे पास लार्जर कंटेंट में होता है दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट. सो द कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन विच प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट, तो वो हमारे पास है सोल्यूट. एंड द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में जो होगा वो हमारे पास कहलाएगा सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट हमारे पास जो है लार्जर अमाउंट में होता है, सॉल्यूट जो हमारे पास है वो लेसर अमाउंट में, स्मॉलर अमाउंट में होता है. तो शुगर के जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसके अंदर शुगर जो है हमारे पास और वो हमारे पास स्मॉलर अमाउंट में है. सॉल्ट के अंदर हमारे पास, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट हमारे पास स्मॉलर अमाउंट में है, वो सॉल्यूट है. वाटर हमारे पास लार्जर अमाउंट में है, वो हमारे पास सॉल्वेंट है. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर हमारे पास स्मॉलर अमाउंट में है, वो हमारे पास सॉल्यूट है. और जो हमारे पास वाटर है वो लार्जर अमाउंट में है, तो वो हमारे पास सॉल्वेंट है. तो आई होप सो आपको समझ आएगा. जो मिल रही है चीज़ वो सॉल्यूट है, जिसके अंदर मिल रही है वो हमारे पास सॉल्यूशन है. एग्जांपल्स ले लेते हैं, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो हमने एक विनेगर लिया, विनेगर में हमने, हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि डिज़ोल्व हुआ होता है वाटर के अंदर, तो एसिटिक एसिड हमारे पास सॉल्यूट है क्योंकि वो हमारे पास स्मॉलर अमाउंट में है, और वाटर जो है हमारे पास वो सॉल्वेंट है बिकॉज वो हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में है. शुगर प्लस मिल्क, हमारे पास शुगर जो है वो स्मॉलर अमाउंट में है, वो सॉल्यूट है, और मिल्क जो है हमारे पास वो हमारे पास लार्जर अमाउंट में है, तो वो हमारे पास सॉल्वेंट है. इसी तरह से हमने स्मोक लिया, स्मोक हमारे पास स्मॉल अमाउंट में है, कार्बन पार्टिकल्स के जिसमें जो हैं वो, और एयर जो है हमारे पास वो सॉल्वेंट है. कार्बन पार्टिकल सॉल्यूट है, एयर हमारे पास सॉल्वेंट है. इसी तरह से हमने जो है वो अल्कोहल प्लस वाटर लिया, तो उसके अंदर अल्कोहल जो है वो हमारे पास सॉल्यूट है, वो स्मॉलर अमाउंट में है, और वाटर जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट है.